Hi, I'm Pavitra. I'm a new mom. I have a 7-month-old baby boy. I've been exclusively breastfeeding him for past 6 months, and now we have started baby-led weaning. On a very popular request, I'm here to talk about my breastfeeding experience. Please note that I'm just sharing my experience. I am not a doctor, a pediatrician, or a child nutritionist. Before taking any influence or any suggestions from me, you should definitely consult a doctor first. So, I'm going to answer some of the most asked questions. So, let's get started. What was your first feeding experience after delivery? First feed experience, it was surreal to be honest because मेरे साथ हुआ क्या था, I was on the bed and the nurse just got the baby and Ocean was like, she told me like what to do, like she explained me like you have to hold your breast like this and baby started latching. तो मैं भी ऐसे काफ़ी सरप्राइज्ड थी कि ये अंदर से कैसे सीख के आया है. तो the nurse told me that babies know how to do it. So that was my experience. How much milk did the baby drank during the first feed? Regarding milk supply, मुझे नहीं पता उसने कितना पिया because breastfeeding में you don't get to know कि कितना बेबी पी रहा है. बेबी इतना छोटा होता है और उसमें इतनी कम एनर्जी होती है कि वो 2 मिनट के लिए सकल करता है एंड देन ही जस्ट स्लीप्स. दैट्स हाउ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज. आई डिडंट नो कि उसने कितना पिया कितना नहीं पिया. बट देन आफ्टर फ्यू आवर्स व्हेन द लैक्टेशन कंसल्टेंट केम टू मीट मी एंड इंक्वायर कि बेबी का फीड कैसे चल रहा है, मैंने उन्हें बताया कि इट्स बीन 4 आवर्स दैट द बेबी हैज़ बीन स्लीपिंग ओनली. मैं ऐसे ओशू को ऐसे चूंटियाँ काट रही हूँ पैर पे, उसके कान खींच रही हूँ, बच्चा उठ ही नहीं रहा, बच्चा सोई जा रहा है. तो लैक्टेशन कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया कि इट माइट बी बिकॉज उसने अच्छे से लैच नहीं किया है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, इसलिए वो सो रहा है. तो हमने उसको तभी फॉर्मूला मिल्क दिया एंड उसके थोड़ी देर बाद अ नर्स केम एंड द नर्स टोल्ड मी कि द फॉर्मूला मिल्क इज़ लाइक जंक फूड फॉर द बेबी. तो ट्राई करो कि आप उसे लैच करवाने की कोशिश करो. तो जो वो नर्स ने एक बात तब बोली थी ना, वो मेरे दिमाग में बैठ गई कि नहीं, मुझे जंक फूड तो नहीं देना अपने बच्चे को. आई वॉन्ट टू ट्राई ब्रेस्ट फीडिंग. इट इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट because it is a new process for both. It was a new process for me, it was a new process for Oshu. So we kept on trying. We tried for a day, for an entire day. My mom came, my aunts came, they suggested, they gave me tips and all कि उसको ऐसे मसाज करो, hold करो, a lot of tips. But then what I did, the smartest thing that I did at that time was getting a breast pump. तो आई जस्ट क्विकली रिमेंबर्ड कि ब्रो आई हैव अ ब्रेस्ट पम्प, मेरे को तो नहीं जागना रात को, मैं ब्रेस्ट पम्प लगाऊंगी, दूध पम्प करूंगी, नानी को पकड़ाऊंगी, नानी दूध पिलाएगी और मैं सोऊंगी. बिकॉज मेरा बहुत क्लियर था, मुझे आई डोंट वांट टू स्टे लेट नाइट्स, आई डोंट वांट टू डू द हार्ड वर्क, आई वांट टू डू द स्मार्ट वर्क. तो इसलिए आई वॉज प्रेप्ड इनफ. आई गॉट माई ब्रेस्ट पम्प. फर्स्ट नाइट ही मैंने पम्प करना शुरू किया. थोड़ा सा दूध निकला, 10 ml निकला, 20 ml निकला, 30 ml निकला. मैंने जितनी फ्रिक्वेंसी पे करना शुरू किया उतनी फ्रिक्वेंसी पे काफ़ी दूध निकलना शुरू हो गया. जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था, जैसे जैसे बेबी उठता था, मैं पंप करती रहती थी. इट्स नॉट लाइक कि मैं पंप लेके ही बैठी रहती थी. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी, बट आई नो दैट आई डिड इट वेरी कंफर्टेबली. आई रिमेंबर व्हेन आई केम बैक होम आफ्टर 2 days, I was pumping a bottle of milk, an entire bottle of milk that was 120 ml within 4-5 days. What did you do to maintain a good milk supply? I think good nutrition and taking care of my diet very diligently worked for me. I have been intentionally and purposely focusing on my diet even before I got pregnant. I don't know if you'll believe me or not, but for past 1.5 years or so, I've been primarily eating just eggs for my breakfast. I don't know if it's good for me or not, but it has worked for me, is all that I know. 3 eggs a day, 3 eggs for breakfast, along with some fruits or some source of complex carbs with dried fruits, with nuts. I think that has been really working out for me. Why I'm saying that very confidently? Because for the past week, I kept Navratri fasting. I was off eggs, I was off meats, and I was taking thoda sa light diet. I was not focusing a lot on protein. My milk supply has come down. I can actually feel the difference. I wanted it to come down because
इट्स बीन 6 months नाउ. मेरे को ऐसे टिप्स शेयर करनी थी टू इंक्रीज योर ब्रेस्ट मिल्क. आई थिंक फ्यू थिंग्स दैट हैव वर्क फॉर मी आर, बहुत सारा खेल होता है यार ब्रेस्ट मिल्क का. एक ऑफ कोर्स इज़ योर डाइट, दूसरा हॉर्मोन्स, एंड तीसरा स्ट्रेस लेवल. मतलब किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना, जो हो रहा है उसको फ्लो होने दो. स्ट्रेस तो हो ही जाता है भाई, हमारी ऐसे फीमेल बॉडी है, पता नहीं कुछ भी हो रहा है, इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो उस बात का स्ट्रेस नहीं लेना. जितना ज़्यादा खुश रहोगे, जितना ज़्यादा अच्छा खाना खाओगे, जितने ज़्यादा स्ट्रेस कम लोगे, उतना ज़्यादा दुद्धू बनेगा. Does moms and aunts pinnies and laddus actually work? So my take on mother-in-laws and aunts giving laddus, pinnies and गुड़ वाला जीरा बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था. सबके साइंटिफिक रीजंस हैं थोड़े थोड़े. आई फील मैंने भी खाया है स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा, बट सब कुछ मिनिमल क्वांटिटी में खाया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स नाप के. फॉर एग्जाम्पल जो पिन्नियाँ होती हैं उसमें बहुत सारे ड्राइड फ्रूट्स होते हैं. ड्राइड फ्रूट्स में बहुत सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो मिल्क सप्लाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं. अब बेबीज़ को, जो यंग बेबीज़ होते हैं, उनका जो ब्रेन होता है पहले 2 साल में बन जाते हैं, तो दे नीड लाइक अ लॉट ऑफ फैट्स. तो आप सेंसिबली फैट्स और वाइटामिन एंड मिनरल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करो. अभी मेरी सजेशन नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई डिड. तो मैंने एक चीज़ क्या की, मैंने जो भी ये सारी चीज़ें खाई, मैंने उनके इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दिया. मुझे पता है कि ग्लूटेनस चीज़ें जैसे वीट हो गया, बहुत सारा ग्राम फ्लावर जो आपका बेसन भी होता है, वो इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो मैंने वो सब चीज़ें थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश की. अगर मैंने पिन्नी खाई तो वो मैंने गुड़ की खाई, शक्कर की खाई, और थोड़ी क्वांटिटी में खाई. ये नहीं है कि लड्डू के लड्डू ठूस रही हूँ. तो प्रोटीन पे फोकस किया, कार्ब्स और शुगर्स थोड़े से कम खाए. Why did you not directly breastfeed Ocean? A lot of people ask me कि पवित्रा आपने ओशन को डायरेक्ट फीड नहीं करवाया या फिर क्यों नहीं करवाते थे. मेंटली मुझे बहुत टैक्सिंग लगता था, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने बहुत कोशिश की. आई हैड इन्वर्टेड निपल्स, आई डिड नॉट हैव प्रॉपर निपल्स, तो वो ओशन फीड ही नहीं कर पाता था उस पर. उसके लिए लैचिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और मुझे भी बहुत मेंटली टैक्सिंग लगता था कि भाई मैं आधा घंटा बैठी हुई हूँ, वो भी बीच में सोई जा रहा है, दूध नहीं पिला पा रही, वो पी नहीं पा रहा, मुझे पता नहीं चल रहा कितना दूध पी रहा है कितना नहीं पी रहा. तो मैंने वो स्ट्रेन लिया ही नहीं अपनी बॉडी पे. मैंने थोड़े दिन ट्राई किया, इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी. मैं सीधा पंपिंग पे आ गई. मैं पंप करती थी, स्टोर करती थी, पिलाती थी. दैट्स व्हाट आई डिड. कन्वीनियंस इज़ माई रिलीजन एंड गो टू थंब रूल. जो जिसको जैसा अच्छा लगे, जो जिसको स्ट्रेस ना दे, जिस चीज़ में खुशी मिले, भाई वो करो. 10 लोगों की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो if it's not making sense. How to decide which breast pump one should invest in? Let's talk about breast pumps now. I think I am very grateful because I am privileged enough to afford all of these breast pumps. ऐसा नहीं है कि ये सारे पम्प्स मैंने एक ही दिन में ख़रीद लिए थे और मुझे पता था कि इन तीनों की मुझे नीड होगी. I bought these 3 pumps over 6 months का ड्यूरेशन, नीड बेसिस पे. नाउ दिस इज़ द पम्प आई लव एंड आई थिंक आई गिव ऑल ड्यू क्रेडिट टू दिस पम्प, जिसने मेरी ऐसे मिल्क सप्लाई मेंटेन करके रखी और स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी एक्सेस मिल्क सप्लाई दी. वाई आई फील सो, बिकॉज जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बेबी जितना लैच करता है उतने ज़्यादा सिग्नल्स जाते हैं आपकी बॉडी को, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी और दूध बनाती है. इस वाले पंप में इतनी, मतलब इसका सक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ये पंप काफ़ी कन्वीनियंट है टू यूज़, जिसकी वजह से मैं इसको ईजिली कर पाई अपने लाइफस्टाइल में. आई फील सबके लाइफस्टाइल, सबके पॉकेट और सबकी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको ब्रेस्ट पम्प चूज़ करना पड़ेगा. मैं तीनों के बारे में बात करूँगी. दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन. दिस इज़ आई थिंक 20K प्लस का रेंज में, बट दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वन. यू जस्ट हैव टू पुट इट, select the suction power, select the cycle power, and you just have to do it. This one is very travel friendly. ProMom, a lot of people have been asking me about my reviews on ProMom. This is a great pump if you are into a lot of traveling. अगर आपको लगता है कि आप अपने ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में ट्रैवल करने वाले हो, यू शुड इन्वेस्ट इन दिस. दिस इज़ आई थिंक 6,500 का एक पंप, 13,000 के दोनों पंप आते हैं. आई विल गेट माई फैक्ट्स चेक एंड write all of it in the description box below. This is medium range. आप ट्रैवल कर रहे हो, काफ़ी कन्वीनियंट है, आप बस लगाओगे अपने कपड़ों के नीचे.
इसका थोड़ा सा आपको वो ध्यान रखना पड़ता है कि ये लीक ना कर जाए, डिपेंडिंग ऑन योर मिल्क सप्लाई. सिंस आई हैड एक्सेस ऑफ मिल्क सप्लाई, तो मेरे को ऐसे 10-10 मिनट में चेक करना पड़ता था कि लीक तो नहीं कर रहा. नाउ द मोस्ट इनकन्वीनियंट ब्रेस्ट पम्प, बट अगेन इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली. 1200-1300 की रेंज में है, बट वेरी ऑनेस्टली मुझे ये एक एमरजेंसी में ख़रीदना पड़ा था. आई वॉज इन इंदौर सम टाइम बैक. मैं इस वाले ब्रेस्ट पम्प की बैटरी ले जाना भूल गई थी, और ये वाला पंप मेरा ख़राब हो गया था बिकॉज मैंने इसको दूध में छोड़ दिया था और मैल फंक्शन हो गया था थोड़ा. And then I had to order this from Blinkit. Now this is very inconvenient. Why? Because you have to put it here and you just have to do it. जितनी भी मॉम्स हैं, दे वुड बी एबल टू रिलेट कि हमारी बॉडी ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों से रिकवर कर रही होती है, इतने सारे पेन से रिकवर कर रही होती है, इतनी ताकत नहीं होती कि हम इतने सारे काम और एक बच्चे को संभालने के बाद हम इसको पंप करने बैठ रहे हैं. दिस इज़ वेरी इनकन्वीनियंट. तो आई वुड नॉट सजेस्ट investing on this pump if you really want to increase your milk supply, if you want to focus on that. आप थक जाओगे mentally भी. और What hygiene precautions should one take while using breast pump? a lot of doctors are against pumping, expressing milk and feeding the child because उनके हिसाब से कौन से होते हैं कि आपका मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा अगर आप बेबी को अपने साथ अटैच नहीं करोगे. एंड दूसरा मेजर रीज़न होता है कि छोटे बेबीज़ को ना इन्फेक्शंस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं इफ़ यू आर नॉट टेकिंग सर्टन प्रिकॉशंस. आई वांट टू शेयर सर्टन प्रिकॉशंस दैट आई टुक एट माई एंड टू इंश्योर कि ओशन की इम्यूनिटी एकदम स्ट्रॉन्ग बने और ओशन को कोई इन्फेक्शन ना हो ड्यूरिंग पंपिंग एंड एक्सप्रेसिंग एंड फीडिंग हिम. तो हमने वी इंश्योर्ड कि जब भी हम उसको बॉटल से फीड करा रहे हैं, बॉटल हर बार स्टरलाइज्ड हो. अगर एक से दूसरी बार बॉटल हम यूज़ करेंगे, दूसरी से तीसरी बार बॉटल हम नहीं यूज़ करेंगे. अगर हम उसको एक्सप्रेस्ड मिल्क मुझे स्टोर करना है तो उसके लिए काफ़ी प्रिकॉशंस होती हैं. आप उस मिल्क को रूम टेम्परेचर पे 2 से ज़्यादा घंटे ना रखें. अगर आप फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं तो 8 से 16 घंटे के अंदर अंदर आप पिला दें. दूध आप जब भी पिला रहे हैं आप उसको चेक करें. दूध को वार्म करने के लिए कभी भी डायरेक्ट हीट पे ना लेकर जाएं. उसको एक पानी में, मतलब इनडायरेक्टली हीट करें. प्लास्टिक में हीट ना करें. ग्लास यूज़ करें, स्टील का, कॉपर का. मैंने ये छोटू स्टरलाइज़र, दिस इज़ अ 4-in-1 स्टरलाइज़र. इसके अंदर आप स्टीम कर सकते हो, स्टरलाइज कर सकते हो, रीहीट कर सकते हो. ये हम लोग रात के लिए यूज़ करते थे सो दैट इट्स कन्वीनियंट फॉर द नैनी ऑल्सो. नाउ वी हैव बीन यूजिंग दिस बिग स्टरलाइज़र ऑल्सो टू कीप उसकी सारी बॉटल्स स्टरलाइज्ड. उसके स्पून्स हो गए, उसके टीदर्स मैं चेक कर रही हूँ. और हाँ सॉरी, सबसे मेजर पार्ट पंपिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं, पंपिंग में, एक्सप्रेसिंग में जो भी चीज़ आपका, जो भी इक्विपमेंट आपके डायरेक्ट ब्रेस्ट के कांटेक्ट में आ रहा है वो एकदम स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए. आप बेसिकली ये सोच के चलो कि दूध यहाँ से निकल के बेबी के माउथ तक जाने में जितने भी रास्ते में चीज़ें हैं ना वो एकदम साफ़ और क्लीन होनी चाहिए. एटलीस्ट स्टार्टिंग के मंथ्स में 3 to 4 मंथ्स तो प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए. नाउ वी हैव शिफ्टेड टू नॉर्मल टैप वाटर. कभी कभी हम पीने वाला पानी भी यूज़ करते हैं टू वॉश हिज थिंग्स. तो दीज आर सर्टन प्रिकॉशंस दैट आई यूज्ड. और मेरे साथ बहुत बार होता था, मेरे पास स्टार्टिंग में एक्सेस मिल्क सप्लाई होता था तो मैं उसको फ्रीज़ कर देती थी. ओशन इतना दूध नहीं पीता था और ज़्यादा निकल रहा था. तो मेरे पास ऐसे लव लैब के स्टोरिंग पाउचेस थे. मैं एक्सप्रेस करते ही मिल्क उसको स्टोरेज पाउच में डालती थी और फ्रीज़र में डाल देती थी. अब उसको फ्रीज़र से निकाल के हम थॉ करते थे और उसी वक्त पिला देते थे. हम उसको दोबारा रीहीट नहीं करते थे. ये बेसिकली जैसे आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो इट, बट जितना भी फ्रोज़न फूड होता है ना उन सब का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप सीधा उसको मैन्युफैक्चर, सीधा उसे प्रोड्यूस करके फ्रीज़ कर दो ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहें. उसमें कुछ भी लाइक बैक्टीरियाज ना बने या फिर कुछ भी ऐसा फॉर्मेशन ना हो जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. तो यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि आप उसको सीधा फ्रीज़ करो, थॉ करो, पिलाओ, दोबारा रीहीट ना करो. general good practices use karo. This has worked for me. This will definitely work for you as well if you take certain precautions. How have you been consuming alcohol while being a breastfeeding mom? Okay, a lot of people have been very curious and asking me about this. How have you been managing alcohol consumption while breastfeeding? I did a trip to Thailand 3 months pehle.
आई हैव बिन पार्टिंग, आई हैव बिन ड्रिंकिंग बीच में 1-2 बार. ऑफ कोर्स आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट ड्रिंकिंग अ लॉट, बट आई डू टेक ओकेजनल ड्रिंक्स. नाउ कैसे वो मैंने किया, तो आप यू कैन सिंपली पम्प एंड डंप. पम्प एंड डंप क्या मतलब है, अगर आपने रात में 9 बजे 2 ड्रिंक्स पी, तो वो 2 ड्रिंक्स आपकी बॉडी में, मतलब एक ड्रिंक 30 ml की एक ड्रिंक मानते हैं, वो आपकी बॉडी में, उसका असर आपकी बॉडी में रहेगा 2 घंटे तक. अगर लेट्स से आपने 2 ड्रिंक्स पी 60 ml, उसकी बॉडी का असर रहेगा 4 घंटे तक. जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे असर बढ़ता जाएगा. तो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, मैंने 60 ml की एक ड्रिंक पी, मेरी बॉडी में असर रहेगा 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, थोड़ा सा इंडियन मेंटालिटी लेके चलते हैं और सेफ हो जाते हैं 6 घंटे. 6 घंटे में अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी. 6 घंटे बाद वाला भी, अगर आई वॉन्ट टू बी सुपर सिक्योर, वो 6 घंटे का दूध जो है मैं उसको पंप करूँगी और डंप कर दूँगी, पौधे में डाल दूँगी, किसी भी चीज़ में डाल दूँगी, बट वो मैं अपने बच्चे को नहीं पिलाऊँगी. अब जो अल्कोहल और ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी है, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अल्कोहल पियो और अपने बच्चे को दूध पिलाओ. अब 6 घंटे मैं पार्टी कर रही हूँ, बट बच्चे को तो दूध चाहिए, राइट. बच्चे को तो हर 2-3 घंटे में दूध चाहिए. तो उस 2-3 घंटे में क्या करना है, मेरे केस में आई हैड एक्सेस मिल्क सप्लाई, तो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था दूध, हम वो उसे थॉ करके पिला देते थे. बट अब जैसे नाउ दैट आई एम वीनिंग, तो हमारे पास इतना एक्सेस मिल्क सप्लाई नहीं है, सारा जो एक्सेस मिल्क सप्लाई था वो ख़त्म हो चुका है. तो नाउ वी जस्ट गिव हिम फॉर्मूला मिल्क, एंड आई थिंक विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन यार. आज के लाइफस्टाइल में, आज की डेट में हम सब ऑर्गेनिक तो नहीं खा रहे ना यार पूरा, हम भी ब्रेक लेते हैं, हम भी जंक फूड खाते हैं. तो आई थिंक फॉर्मूला मिल्क इज़ टोटली फाइन, हम भी दे देते हैं फॉर्मूला मिल्क. मेरे सोशल मीडिया और मेरे शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट में, रील्स में, पिक्चर्स में बहुत बारी लगता होगा कि हाँ इसकी लाइफ फ्लॉलेस है, एक हंसता हुआ बच्चा है जो पूरा टाइम हंसता है, एक हस्बैंड है जो पूरा टाइम कोऑपरेट करता है. हस्बैंड तो कोऑपरेट करता है, बच्चा भी हंसता है काफ़ी टाइम, बट इट इज़ नॉट एज फ्लॉलेस एज इट माइट लुक. आई हैव माई शेयर ऑफ डिफ़िकल्टीज दैट आई हैव बीन थ्रू माई इंटायर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी. इट इज़ अ टफ प्रोसेस, काफ़ी टफ है मेंटली, फिज़िकली. पंपिंग इज़ ऑल्सो नॉट वेरी ईजी. मैं दिन में आधा घंटा 3 से 4 बार पंप करती थी स्टार्टिंग में. इट यूज़ टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब मेंटली भी और फिज़िकली भी. माई ब्रेस्ट यूज़ टू पेन, एंड उससे ज़्यादा मुझे लगता है एक मेंटल ब्लॉक भी आ जाता है कि मैं क्यों कर रही हूँ बार बार. देयर इज़ फॉर्मूला मिल्क, तो मुझे क्यों करना है, मतलब इट कैन गेट डिफ़िकल्ट. तो आई वुड से अगर आपको जब भी कोई भी चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो, आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है, आपको क्या खुशी देगा. आई थिंक वो मेरा एक कमिटमेंट था कि मुझे 6 महीने देना है, वो चीज़ मुझे खुशी दे रही थी 6 महीने तक, तो मैंने करनी चाहिए और मैंने की. बट आफ्टर 6 months I've started weaning. I'm not exclusively breastfeeding my child. We have shifted to formula, and regarding that I will try to share in my next video maybe. I know मैं इससे थोड़ी harsh मॉमी और मदर इन लॉज एंड आंटीज़ की तरह साउंड कर रही होंगी कि हाँ ठीक है ब्रेस्ट फीडिंग करो, दूध पिलाओ, माँ का दूध पिलाओ. बट सी, दिस वॉज माई पर्सनल कमिटमेंट. मुझे डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने पिलाना ही चाहिए, तो ये मेरा कमिटमेंट था, तो मैंने किया. बट आई एम इन नो वे इन्फोर्सिंग इट ऑन अदर मॉम्स और फेलो मॉम्स, बिकॉज सबका लाइफ स्टाइल इज़ अलग, सबके प्रॉब्लम्स आर अलग, सबका बॉडी इज़ अलग. दिस वॉज माई कमिटमेंट. मैंने कोशिश की, जो चीज़ें मेरे लिए वर्क की मैंने वो ट्राई किया कि वो मैं आपके साथ शेयर करूं, सो दैट आप भी कर सकें अगर आपको करना है तो. बाकी इफ़ देर आर एनी फर्दर क्वेरीज या फिर कुछ भी क्वेश्चंस, यू कैन ड्रॉप ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स बिलो. आई विल ट्राई टू आंसर दैम. बाकी अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगे एंड इफ़ यू वांट मोर ऑफ सच वीडियोस फ्रॉम मी, एंड इफ़ यू वांट मी टू शेयर मोर ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग और मदरहुड और पेरेंटिंग, तो बहुत दूर की बात है, अभी मैं खुद सीख रही हूँ ये चीज़ें. तो I would love to share my experience with you all, but don't forget to like, comment, share and hit that bell icon so that you get a notification whenever I post a new video.